تعلیمی اداروں میں چھٹیوں سے متعلق اہم خبر ہے۔ کورونا کی 5ویں لہر اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر والدین، طلباء اور حکام سبھی پریشان ہیں۔ چھٹیاں بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ تعطیلات 6 جنوری سے 13 جنوری تک بڑھانے پر غور ہے۔ موسم سرما کی چھٹیاں 23 دسمبر سے 6 جنوری تک جاری ہیں۔ پہلے سے دی گئی چھٹیاں ختم ہونے میں صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فیصلے کی صورت میں تعلیمی ادارے 13 جنوری تک بند رہیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے۔ جنید، آگاہ کیجیے گا، چھٹیاں بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے؟ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 22 اضلاع میں 6 جنوری تک جو ہے وہ چھٹیاں دی گئی تھی، جس میں لاہور بھی شامل تھا۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کیونکہ یہ پورا ہفتہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور دوسری جانب اومیکرون کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے جو ہے وہ مشاورت شروع کر دی، اور 22 اضلاع میں جہاں 6 جنوری تک چھٹیاں تھیں، وہاں کے جو سی او ایجوکیشن ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ان سے جو ان کے اضلاع کی موجودہ صورتحال ہے اومیکرون کے حوالے سے اور سردی کی شدت کے حوالے سے، اس حوالے سے مشاورت کی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور سمیت 22 اضلاع میں چھٹیاں جو کہ 6 جنوری کو ختم ہو رہی ہیں، ان کو ایک ہفتہ مزید بڑھا دیا جائے، اور اس حوالے سے مشاورت جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ 6 جنوری سے 13 جنوری تک جو ہے وہ چھٹیاں بڑھا دی جائیں، کیونکہ سردی کی شدت بڑھ رہی ہے اور بچوں کے حوالے سے، کیونکہ بچوں کو امپورٹنس دی جاتی ہے اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی کسی قسم کا رسک جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس حوالے سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چھٹیاں ایک ہفتے تک بڑھا دی جائیں، تو اس حوالے سے جو مشاورت ہے وہ کی جاتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز سے باہمی مشاورت سے جو ہے کیا جائے گا، لیکن ابھی جو ہے وہ تفصیلات مانگ لی گئی ہیں اور موجودہ صورتحال پر ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ موجودہ صورتحال پر ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ جنید ریاض، آپ کا بہت شکریہ۔ چھٹیوں کا امکان ہے، جبکہ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں جو ہیں وہ ایک ہفتہ بڑھانے پر غور رہا ہے۔ موسم کی صورتحال پر بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ شہر میں وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ خنکی بڑھ گئی ہے وحدت کالونی، کلفٹن کالونی، جبکہ ٹاؤن شپ گلبرگ سمیت مختلف علاقوں میں بارش، جبکہ ماڈل ٹاؤن، کوٹ لکھپت، نیو مسلم ٹاؤن کے علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کن کن علاقوں میں بارش ہے اور کب تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جانیں گے سعدیہ خان سے۔ سعدیہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، بالکل، موسم سرما کی یہ پہلی بارش ہے جس سے نہ صرف سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ نومبر کے آغاز کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ فضائی آلودگی کے معاملات کافی زیادہ سنگین تھے۔ لاہور کی فضا کافی زیادہ آلودہ تھی، تو اس بارش کی وجہ سے خاص کر لاہور کی فضا صاف ہوگی، اور ابھی بھی آج اگر ہم لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو آج لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 160 ریکارڈ کیا گیا۔ اسی موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بارشوں کا یہ سپیل جو ہے 3 سے 4 روز خاص کر پنجاب اور لاہور میں قیام کرے گا اور وقفے سے بارش کا باعث بنے گا۔ آج بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں، جس میں جیل روڈ، مال روڈ، گلبرگ ٹاؤن شپ، سمنا آباد، گلشن راوی، رائمنڈ، جوہر ٹاؤن اور گلشن راوی کا علاقہ شامل ہیں، یہاں پر بارش ہوئی ہے، جبکہ کل سے یہ سسٹم جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہوا ہے، اور جو کہ نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی بارش کا باعث بن رہا ہے۔ کل کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کل لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ اچھی بارش ہوگی، اور بارش کے بعد ظاہر سی بات ہے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ فضا جو ہے وہ مزید صاف ہوگی۔ اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سردی کا موجودہ سپیل جو ہے وہ 15 جنوری تک چلے گا، اور 15 جنوری کے بعد جو ہے موسم کھلنا شروع ہو جائے گا، اور خاص کر دن کے اوقات میں سورج کی تپش کی وجہ سے پارا بھی بڑھے گا، لیکن پھر وقت لاہور کا موسم خوشگوار ہے، بارش ہو رہی ہے، ابھی بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور کے مختلف علاقوں میں اسی طرح سے موسم خوشگوار رہے گا، بادل چھائے رہیں گے اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سعدیہ خان، آپ کا بہت شکریہ۔ موسم شہر میں ہونے والی بارش کی وجہ سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہو گیا ہے۔ متعدد علاقوں میں فیڈر ٹرپنگ سے معطل ہونے والی بجلی کو تاحال بحال نہیں کیا جا سکا۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے مختلف علاقوں میں ٹرپنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شاہد سپرا سے۔ شاہد، بتائیے گا کن کن علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل ہے؟ شہر میں ہونے والی بارش کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں اس وقت بھی بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بارش کے دوران کمپنی کے 11 kV کے فیڈرز ٹرپ ہوئے، جہاں سے تاحال بجلی کی فراہمی بحال نہیں کی جا سکی، اور مختلف علاقے جو اس وقت بجلی کی فراہمی جہاں پر متاثر ہے ان میں اردو بازار، باغبان پورہ، کینٹ اور مناوا کے علاقے شامل ہیں۔ اسی طرح دوسری جانب شمالی لاہور کے علاقوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں فتح گڑھ، آصف کالونی اور دوسری جانب بھاٹی گیٹ اور بکر منڈی کے علاقے ہیں۔
यहाँ पर भी फीडर ट्रिप होने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। फीडर स्ट्रिप होने की वजह से मुकद्दस पार्क, डेविस रोड, इत्तेहाद कॉलोनी, शाहदरा और इसके साथ जिया मूसा, रिंग रोड और मुल्तान रोड के अतराफ में भी कुछ ऐसी आबादियां हैं जहां पर बिजली की सप्लाई मुअत्तल है और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए ने यह बताया है कि रात में जब बारिश हुई तो ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि नवाज शरीफ कॉलोनी फिरोजपुर रोड के इलाका मकीन गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बच्चों की बड़ी तादाद ने एहतजाज में शरीक होकर हुकूमत से गैस की फ्राहमी का मुतालबा किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रुमेल इलियास से। रुमेल, आगाह कीजिएगा कि शहरियों के इस हवाले से क्या कहना है। बिल्कुल, इस वक्त मैं नवाज शरीफ कॉलोनी फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ के इलाका मकीन जो है वो गैस की अदम फराहमी के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो गैस ना आने के बायस सरापा एहतजाज है और हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है कि स्कूल जाने और स्कूल से वापस आने के औकात में जो है वो हमें गैस की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। नन्हे बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, एक बच्चे से जानेंगे कि क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं आपको गैस ना आने के बायस। हम सुबह को स्कूल जाना होता है तो हमें गैस आती भी नहीं है, तो हमने नाश्ता करके जाना होता है स्कूल। तो हमने जब आते हैं स्कूल से हमें फिर खाना भी चाहिए होता है, तो गैस ही नहीं आती, हमें गैस मुहैया करो। जी, स्कूल से जाते हुए और स्कूल से वापस आते हुए जो है वो इनको खाना वक्त पर नहीं मिलता। नन्हे बच्चे का हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम से कम जो है वो खाना पकाने के औकात में गैस की फरहमी को जो है वो यकीनी। ठीक है रुमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दी के सबब कोयले की मांग बढ़ गई है, जबकि कोयला 80 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदार कहते हैं कि गैस ना होने पर भी शहरी कोयला इस्तेमाल करते हैं। मजीद जानेंगे शाहजेब भट्टी से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ शहर के बाज़ारों में कोयले की मांग में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो है मैं टाउनशिप बाज़ार में मौजूद हूँ और मैं एक टॉल पे मौजूद हूँ, जहाँ के जो दुकानदार है मेरे साथ मौजूद है। मुझे बताइए कि कितना कोयला जो है वो आपकी दुकान पे स्टॉक में आपने किया हुआ है। कोयला हमने जी सर्दी के लिए जो है ना तकरीबन 700 मन कोयला हमारे पास पड़ा हुआ है इस टाइम। और ये सर्दियों में ये कोयला जब ये जो पहले महीने में सर कोयला बिकता है, बारबेक्यू के लिए लोग लेके जाते हैं, तो घरों में गैस नहीं आती, लकड़ी लेके जाते, कोयला लेके जाते, होटलों वाले लेके जाते। जब गैस जब नहीं आती तो कोयला लेके जाते हैं और कोयला जो है ना हम 80 रुपये किलो बेचते हैं। ये पिछले साल का रेट है। अच्छा, मौसम के हिसाब से अगर देख लिया जाए कि गर्मियों में कोयले का कितनी फ़रोख्त होती है और सर्दियों में कितनी होती है? हम पल्लों से डालते हैं, पल्ले से। गर्मियों में कोई काम नहीं होता। हम तकरीबन यहाँ 4-5 आदमी होते हैं। गर्मी में हमारा काम नहीं होता, हमारा पहले महीने दूसरे महीने में, ये 2 महीने में हमारा होता है। गर्मी में तो कुछ गर्मी होती। सर्दी में कोयला इसलिए ज़्यादा जाता है, कोई हाथ सेकने के लिए लेके जाते हैं, कोई बारबेक्यू घर में करते हैं। ये लोग इतवार वाले दिन हफ्ते को बच्चे घर में होते, स्कूल से छुट्टी होती और होटलों वाले लेके जाते हैं, हाथ सेकने के लिए लेके जाते हैं कोयले। शाहजेब भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना और डेंगू का मिलकर वार। एक तरफ कोरोना के केसेस में अचानक इजाफे ने 5वीं लहर के खदशात बढ़ा दिए, तो दूसरी जानिब डेंगू से भी एक शहरी जान की बाजी हार गया। कोरोना की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 161 नए केसेस रिपोर्ट हो गए और मुस्बत केसेस की शरह भी 2% तक जा पहुंची है। जबकि डेंगू फीवर में मुब्तला एक मरीज दम तोड़ गया। शहर में डेंगू के 19 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना और डेंगू का मिलकर वार। एक तरफ कोरोना के केसेस में इजाफा तो दूसरी जानिब डेंगू से भी एक शहरी जान की बाजी हार गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर ये गले सड़े फलों और सब्जियों से तैयार अचार और मुरब्बा जात खाने से बच के चाइना रोड शालीमार टाउन में वाक़े मुरब्बा और अचार यूनिट पर फूड अथॉरिटी का छापा मारा गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शालीमार टाउन में वाक़े चाइना रोड पे मुरब्बा व अचार यूनिट्स पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से 1600 किलोग्राम नाकश मुरब्बा जात और अचार की भारी खेप है जो कि बरामद करके तल्फ कर दी है। गले सड़े फलों की मदद से जो है वो मुरब्बा जात तैयार किए जा रहे थे, जबकि सब्जियों को नाकश खुले मसाला जात लगाकर अचार की बड़े पैमाने पे तैयारी का अमल जारी था कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए मसनूई फ्लेवर्स, केमिकल्स के इस्तेमाल और गैर मयारी स्टोरेज पे कार्रवाई करते हुए वहां से भारी खेप है अचार और मुरब्बा जात की जो कि जब्त करके तलब कर दी है। गंदे डिब्बों और ममनुआ नीले केमिकल ड्रम्स में स्टोर फंगस ज़दा मुरब्बा और अचार शहर में सप्लाई के लिए तैयार किया जा रहा था कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने बर वक्त इत्तला पे छापामार कार्रवाई करते हुए बर वक्त ये कार्रवाई की गई है। रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया।
दूसरी जानिब LDA का फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर की एराजी पर कारोबारी सरमायाकारों को खुसूसी बिल्डिंग रूल्स के तहत रायत देने का वर्किंग पेपर गवर्निंग बॉडी को इरसाल कर दिया गया है। मजीद जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, LDA में खुसूसी कवायद जो है वो तामीराती मुतारिफ कराने का फैसला किया गया और फाइनेंस और ट्रेड सेंटर जो जौहर टाउन में काफ़ी लैंड पड़ी है जिस पे सरमायादारों की बड़े अरसे से अदम दिलचस्पी सामने आ रही है। अब उनको अट्रैक्ट किया जाएगा और अट्रैक्ट करके उनको खुसूसी तामीराती कवायद दिए जाएंगे। इसका वर्किंग पेपर साल कर दिया गया है। फ्लोर रेशो एरिया बढ़ाया जाएगा, उनके लिए फ्री जोन, फ्री हाइट रखी जाएगी। इसके साथ साथ जो चारों तरफ जगह छोड़ने की पाबंदी थी उसमें भी नरमी तजवीज़ की गई है और FTC में खसूसी रियायत देने के हवाले से केसेस को एक्सपीडाइट और एक्सप्रेस तरीक़ाकार से निपटने के लिए एक कमेटी भी तजवीज़ की गई है जिसकी सरबराही DG LD करेंगे। डायरेक्टर फाइनेंस, चीफ टाउन प्लानर, चीफ मेट्रो प्लानर, चीफ इंजीनियर उसके मेंबर होंगे। इस हवाले से वर्किंग पेपर अरसाल कर दिया गया और उसमें CBD की तर्ज पे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में जिस तरह से उन्होंने सरमायाकारों को बुलाया, मदऊ किया और तामीराती कवायद में नरमी रख के उनको फ़ायदा दिया, उसी तर्ज पे अब फाइनेंस ट्रेड सेंटर के भी कवायद में नरमी बढ़ी। ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी वक्त क़याम के बाद दूसरी बार ज़री एराजी की नीलामी का फैसला किया गया है। 200 एकड़ एराजी की लीज़ पर नीलामी की जाएगी। आपको बताएं कि इस हवाले से लीज़ पर देने का फैसला किया गया है। लीज़ पर नीलामी की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान यूनुस से। इमरान, आगाह कीजिएगा, लीज़ नीलामी की वजह क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी वक्त क़याम के बाद दूसरी बार अपनी ज़रई अराज़ी नीलाम करने जा रही है। लीज़ पर यह नीलामी जो है वो होगी और तकरीबन 200 एकड़ अराज़ी जो है, ज़रई अराज़ी जो है वो उसकी नीलामी जो है वो की जाएगी। और इस नीलामी की ज़रूरत जो है वो क्यों महसूस हुई, इस हवाले से हम बात करेंगे। आरोटूर जलील तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि ये जो लीज़ पर ऑक्शन की जा रही है इसकी वजह क्या है, क्यों की जा रही है और क्या इससे रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट होगा यूनिवर्सिटी को? जी बहुत शुक्रिया जी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तकरीबन 1000 एकड़ के करीब ज़मीन ऐसी है कि जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम लीज़ आउट करते हैं और ये लीज़ एग्रीमेंट 1 साल के लिए होता है। हर साल उसमें लीज़ रेंट में हम इजाफ़ा करके उसी बंदे को रिन्यू कर देते हैं। इस बार यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला किया है कि उस एग्रीमेंट को रिन्यू करने की बजाय हम ओपन ऑक्शन में जो है इस ज़मीन को लीज आउट करें और उससे होपफुली ये है कि अच्छे पोटेंशियल वाले लोग आएंगे और ज़मीन की बेहतर प्रोड्यूस होगी, उसकी यूटिलाइजेशन बेहतर होगी और यूनिवर्सिटी को बेहतर रेवेन्यू मिल सकेगा। इस वक्त हमारे पास जो ज़मीन मौजूद है उसमें जो ट्यूबवेल से इरीगेट करते हैं उसका 60,000 रुपये पर एकड़ पर एनुअल हमें रेंट मिलता है और इसी तरह वो ज़मीन जिसको नहर का पानी लगता है 72,000 रुपये पर एकड़ उसका रेंट हमें मिलता है। और ये मैं समझता हूँ कि पंजाब में मोर देन एवरेज जो रेंट है वो हमें मिल रहा है। लेकिन ओपन ऑक्शन के नतीजे में हम समझते हैं कि इस रेट में मज़ीद इजाफा होगा, इस तरह हमारी आमदन में भी इजाफा होगा और अच्छे पोटेंशियल वाले लोग जो हैं वो ज़मीन को कल्टिवेट करने के लिए हमें मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। आर2 हमारे साथ मौजूद है जिनकी जानिब से बयान ये किया जा रहा है और ख़ास बात जो बयान की जा रही है वो यही है कि हर साल एक्सटेंड कर दिया जाता है। यूनुस, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने पहले 6 माह सूबाई इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। इस माली साल में 650 अरब रुपये से ज़ायद का बजट इस्तेमाल करने का हदफ पंजाब हुकूमत ने तमाम सूबाई इदारों को दिया। अब उसके मीडिया रिव्यू के हवाले से तमाम अदारों से कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई और वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा ये टास्क चेयरमैन PND बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल को दिया है कि वो मिड ईयर रिव्यू जो है वो करें और इसमें तमाम सूबाई इदारों से रिपोर्ट तलब की जाए कि 6 माह के दौरान उन्होंने अब कितना बजट इस्तेमाल किया। और आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने बेशतर सरकारी महकमों को बाकायदा लेटर भी जारी किए गए और उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार जो है वो भी किया गया और साथ ये भी कहा गया है कि अगर ये यूटिलाइजेशन बेहतर ना हुई तो उनको मज़ीद इस पर फैसले करने पड़ेंगे। और जिन महकमों की कारकर्दगी बेहतर थी उनको तारीफ़ी सर्टिफिकेट जो हैं वो भी दिए गए। अब इस पर वज़ीर पंजाब ने ये टास्क दिया कि तमाम सूबाई इदारे अपना बजट जो है वो बर वक्त इस्तेमाल करें ताकि यूटिलाइजेशन इसकी बेहतर हो और जो 650 अरब रुपये का डेवलपमेंट का बजट है और इसके लिए जो मनसूबा जात हैं 7,000 से ज़ायद उनको बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। जो इस साल मुकम्मल हो सकते हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा और जो आइंदा माली साल के दौरान मुकम्मल हो सकते। ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। डॉल्फिन स्क्वाड के मोटरसाइकिलों की खरीदारी और मरम्मत मोटरवे पुलिस की तर्ज पर की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद, आगाह कीजिएगा। डॉल्फिन स्क्वाड की मोटरसाइकिलों की खरीदारी और मरम्मत मोटरवे पुलिस की तर्ज पर की जाएगी, जिसके लिए डॉल्फिन स्क्वाड के मास्टर ट्रेनिंग पर मुश्तमिल कमेटी ने
सिफारिशात जो है वो सीसी पे लाहौर को भिजवा दी हैं। सिफारिशात में कहा गया है कि मोटरसाइकिलों को 4 साल इस्तेमाल या 1,20,000 किलोमीटर चलने के बाद नीलाम कर दिया जाएगा। हर साल डॉल्फिन स्क्वाड के लिए कम से कम 200 नई मोटरसाइकिलें जो है उनकी खरीदारी के अमल को यकीनी बनाया जाए। इस वजह से जो सिफारिशात भिजवाएगी उनमें ये भी कहना है कि डॉल्फिन स्क्वाड के लिए 250 सीसी या कम से कम 150 सीसी मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं और ऐसी कंपनी से मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं जिनके पुर्जे आसानी से दस्तयाब हों। डॉल्फिन स्क्वाड की मोटरसाइकिलों की खरीदारी से मुताल्लिक पॉलिसी जो है वो 6 साल बाद बनाई जा रही है, लेकिन 6 साल तक चलने वाली डॉल्फिन स्क्वाड की मोटरसाइकिलें जो है वो इस वक्त कटारा होती जा रही है। जी ठीक है आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आईजी का कैंटीन, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी समेत सीपीओ के शोबों का दौरा, मरकजी इमारत की तज़ीन व आराइश, रिकॉर्ड की आर्काइविंग और दीगर दफ्तरी अमूर की इंस्पेक्शन की। जबकि आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने मुख्तलिफ फ्लोर्स पर तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। जबकि आईजी डेवलपमेंट समेत दीगर सीनियर अफसरान भी आईजी पंजाब के हमरा थे। आईजी ने किचन की इंस्पेक्शन की और खाने के मेयार मजीद बेहतर बनाने की हदायत भी की। गाड़ियों की पार्किंग लाइन बेहतर करने और पार्क में नए पौधे लगाने की हदायत भी जारी की। जबकि आईजी का दफ्तर फाइल्स के रिकॉर्ड की डिजिटल आर्काइविंग जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की सीनियर पार्टी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के घर आमद। ख्वाजा सलमान रफीक ख्वाजा साद रफीक ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की आमद पर उनका खैर मकदम किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। उमर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के घर पहुंचे, जहां पर ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफीक को उनकी बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी। मियां शहबाज शरीफ ने शादीशुदा जोड़े की ये नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि दुआ गो है कि अल्लाह ताला सब बेटियों को अपने घरों में आबाद रखे। जबकि इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की घर आमद पर शुक्रिया अदा किया। जी ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।